हेलो एंड गुड इवनिंग। चैट विद छाबड़ा के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ऋषि। 7 डेज एक्चुअली 7 दिन से बहुत कम टाइम रह गया है आईपीएल 2020 का सीजन चालू होने में। उल्टी गिनती चालू हो गई है बिफोर वी गो लाइव विद द फर्स्ट मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस ऑन द 19th सितंबर। आज का जो शो है बहुत ही स्पेशल है। वी आर इनटू द लास्ट टू टीम्स, लास्ट दो टीम्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते चैट विद छाबड़ा पे। दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे आज एंड मुंबई इंडियंस की कल। शो की शुरुआत करने वाला हूं मैं। जैसा कि आप सारे फैंस को पता है, आप हमें इंस्टाग्राम पे लाइव रिक्वेस्ट भेज सकते हैं शो का हिस्सा बनने के लिए एंड फ्यू लकी फैंस होंगे जो मेरे से 1-to-1 चैट करेंगे इंस्टाग्राम हैंडल पे। बिफोर आई स्टार्ट विद द शो टुडे, जैसा कि आप सबको पता है, एंड ऑफ द शो पे एक लकी फैन जीतेगा एक गली आईपीएल स्पॉन्सर्ड जर्सी। सो मेक श्योर यू सेंड इन रिक्वेस्ट। इफ यू द लकी वन, आई विल गेट यू ऑन द शो एंड वन लकी विनर विल गेट अ जर्सी। बिफोर आई स्टार्ट द शो, दिल्ली कैपिटल्स की हम बात करने वाले हैं। अनदर टीम दैट हैजंट वन अ सिंगल आईपीएल टाइटल येट। ऐसी टीम जो आईपीएल टाइटल अभी तक नहीं जीती है, तो होपफुली यू नेवर नो 2020 माइट बी द लकी ईयर फॉर दिल्ली। फैंस हमें इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि क्या लगता है उन्हें दिल्ली के चांसेस हैं या नहीं है। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आपको लगता है टॉप परफॉर्मिंग रहेगा। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर अबाउट दिल्ली कैपिटल्स, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल नाउ गो अहेड एंड स्टार्ट द शो। चलिए देखते हैं सबसे पहला गेस्ट कौन है आज हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल अस योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम। I am Gurkirat. I am from Delhi. Right now in my home, obviously. Okay. दिल्ली वालों की दिल्ली, हाँ हाँ, and वो भी proper दिल्ली. I am from West Delhi. Okay. वो विराट कोहली जहाँ से है, जहाँ से शिखर धवन है, शिखर धवन का जो स्कूल है वो भी बहुत पास में है. In fact, my mother was a teacher in that school. Wow. So yeah, been in the city for the last 20 years. Grown up here, did my schooling here, did my engineering here, worked here. And now back here in the city. I was away in Mumbai for a year, but nothing to beat Delhi and its atmosphere. चलिए शो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं, आपने दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी भी पहनी हुई है। और क्या लगता है आपको इस साल चांसेस हैं दिल्ली के फाइनल जीतने के? See, one thing that has worked really well for Delhi is कि जो कोटला का पिच होती थी, now they will have 3 similar grounds which have the same pitches, right? Okay. So adjustment का कोई issue नहीं होने वाला, and the team has also been framed keeping that in mind. You see कि there is almost all kinds of spinner available. Akshar Patel hai, who's a left-arm orthodox spinner. There's Amit Mishra, who's the highest Indian wicket taker in the IPL. Ravichandran Ashwin, very experienced. There's a very good leg spinner, another fast leg spinner in Lami Chane, who's also done very well in the CPL. So I think the bases are covered. Ek do signings thi which the fans thought ki they may not fit, like Jason Roy and Chris Oakes ka, but I feel with their replacements now they've covered those gaps as well. There's Nortje, who's going to be a good replacement for Rabada. So I think the bases are covered. And if you talk of the Indian batting core, I don't think you will find a better Indian batting core in the entire IPL which Delhi has, right? You have the experience of Rahane and Dhawan, and then you have the youthful experience of, say, a Shaw, Iyer and a Pant. Iyer, though, you will also see anyone who's been following, he's also matured as a player since he's taken the reins of captaincy. So yeah, also another thing is कि batting order भी एक दूसरे को अच्छे से complement करता है. There's a left hand right hand combination going on as well. Like you have openers which will most likely be Shikhar and Shaw. So they are left-handed, right-handed. Then you have Iyer to follow, and then there's been a very good addition which is Hetmeyer. Who's also, what is very important is कि foreign जहाँ पे other teams struggle is that you struggle to find a good foreign batsman who can play spin well. Right? I think what interesting is that the big names are missing from the Delhi Capital lineup. The big international names, like you said, there's been a lot of replacements, a lot of players, not making it to the IPL this year. How important do you think that international experienced players not making it to the team will be on Delhi Capital? How damaging that will be for the team? See, the one thing that I think people need to understand is that the team that wins the tournament is the one that has a very strong Indian core. Chennai Super Kings and Mumbai Indians have been a very fine example of that, right? So, because the Indian core is sorted, the team's still very, very much sorted, right? And
जो एक अच्छा बैट्समैन इस बार साइन हुआ है वो है शिमरॉन हेटमायर. And with Shimron Bhatnagar, what you see is he plays spin really well. He's been, when he came to India, he took Kuldeep and Chahal to the cleaners for 2 of the 3 games, right? In the बट आई थिंक ODIs. आप He did very well. हेटमायर की बात करें तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में वैसे कोई उनकी इनिंग्स देखने को नहीं मिली, मतलब वो एक मैच विनिंग नॉक अगर आप उसको बोले तो वो एक मिसिंग था. जैसे आपने चेन्नई सुपर किंग्स की बात की, तो चेन्नई सुपर किंग्स में हमने साल दर साल देखा है कि ब्रावो पिच इन करते हैं बॉल के साथ. वॉटसन लास्ट 2 आईपीएल सीजन से परफॉर्म कर रहे हैं. फैफ डुप्लेसी हैज बीन अ वेरी कोर पार्ट ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स. तो आई थिंक दिल्ली कैपिटल कहीं ना कहीं एक लैक करती है. चलिए बात करते हैं हम अभी इंडियन बैटिंग की, बिकॉज दुबई में आईपीएल हो रहा है. तो क्या लगता है आपको कैसा रहेगा दिल्ली के यंगस्टर्स के लिए? इंडिया में तो हम हर साल खेलते हैं आईपीएल, इस साल पूरा सीजन दुबई में हो रहा है. एक्सपीरियंस वाइज एंड कैसा उनका रहेगा एक्सपीरियंस दुबई का, क्या लगता है आपको यूएई का? आई थिंक पिच ज्यादा चेंज नहीं होने वाली, राइट? सिर्फ एक अबू धाबी की पिच है which might be a little slower. So pitch ज्यादा चेंज नहीं होने वाली. In fact, if you ask me, batting is going to be a little difficult if you compare the pitches in UAE to the pitches that are there in Wankhede या Bangalore में हो गया, चिन्नास्वामी में. They are much better for batting. So I think that way the team that has more Indian batsmen or is used to playing on slow tracks, they will have an added advantage. So I think that is where the likes of Iyer, who's a very very good player of spin, he'll show through. Pant will show through. I expect a lot out of Shaw as well. So again, and like I said, Dhawan, जैसे कि उन्होंने second half last year में IPL में show किया, if he has the positive intent to attack from the start, he can also do very well. He had 3 or 4 back-to-back 50s, right? And all of them were very key in chasing down scores. So I think the batting is sorted. You just need Hetmeyer to, show some form, and then you will have your top 5 sorted pretty well. And with the bowling, ठीक है. चलिए फटाफट बिफोर वी एंड दिस सेगमेंट विद यू, हमें जल्दी से ये बताइए ऐसा कौन सा एक आपको प्लेयर लगता है जो दिल्ली कैपिटल के लिए टॉप परफॉर्मर रहेगा, मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सके टू टेक दिल्ली कैपिटल टू दैट आईपीएल चैंपियनशिप. ऐसा एक प्लेयर बताइए हमें जल्दी से. अभी तो फॉर नाउ इट्स हार्ड टू लुक बियॉन्ड ऋषभ पंत, जस्ट ऑन sheer potential. एंड व्हाई डू यू थिंक ऋषभ पंत? And I think if Lamichane plays all games, I think he has a good chance to win the purple cap. Okay. चलिए, क्योंकि हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो. फिंगर्स क्रॉस्ड, वी वुड डेफिनेटली वांट टू सी दिल्ली कैपिटल्स परफॉर्म रियली वेल. दिल्ली कैपिटल इज माय सेकंड प्रेफरेंस आफ्टर चेन्नई सुपर किंग्स. सो होपफुली दिल्ली चेन्नई का फाइनल हो, मजा आएगा इस बारी आईपीएल में. थैंक यू सो मच. आई थिंक वेरी इन डेप्थ एनालिसिस बाय वन ऑफ द फैंस फ्रॉम दिल्ली कैपिटल. बहुत ही अच्छी उन्होंने बात कही कि इंडियन कोर जो है दिल्ली कैपिटल का बहुत ही बढ़िया है. बल्लेबाजी की बात करें या हम गेंदबाजी की बात करें, बहुत ही बैलेंस साइड लग रहा है, बहुत ही यंग साइड है. फैंस आप हमें बता सकते हैं इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन पे, लाइव पे कमेंट सेक्शन पे, कि आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या लगता है आपको कि कैपेबिलिटी है दिल्ली कैपिटल्स में आईपीएल जीतने की इस साल, या इस साल नहीं होगा एंड दे विल हैव टू वेट फॉर अनदर ईयर टू मेक इट टू द फाइनल्स एंड विन द ट्रॉफी. चलिए एक और फैन को ऐड करते हैं. चलिए, दिख रहा है दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करते हैं. आपने भी दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी पहनी हुई है. यस सर. तो मतलब कोई चांस वांस है यार कि फिर वही हर साल का वही पुरानी स्टोरी, बॉटम ऑफ द टेबल या प्लेऑफ क्वालिफाई करके आगे नहीं जाएंगे, फाइनल जीतेगी इस बारी दिल्ली कैपिटल्स? सर जीत सकते हैं, क्योंकि इस बार आप देखो काफी अलग अलग प्लेयर आए हैं जो जिनको फर्क नहीं पड़ता आगे कौन सा बॉलर है, स्पिनर है, पेसर है, जो सिर्फ शॉट मारने में ही रहते हैं, जैसे शिमरन हेटमायर, एलेक्स कैरी, और बॉलर में मार्कस स्टोइनिस और नॉटरिज जो करके हैं एक साउथ अफ्रीका की. चलिए, ये तो बात हुई कि फाइनल जीतेगी कि नहीं जीतेगी. बात करते हैं जो यंग ब्रिगेड है दिल्ली कैपिटल्स के. हमें पता है कि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, 2 players who can make it to India's limited over format team as well. पृथ्वी शॉ है जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी मारी थी. शिखर धवन है जो कि मतलब बोलते वीरेंद्र सहवाग का छोटा पटाखा वर्जन है. तो ओपनिंग सॉर्टेड है, मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है दिल्ली का. क्या लगता है बैलेंस साइड है बैटिंग में, या अभी भी कोई ऐसी एरिया है जो मिस हो रहा है? नहीं सर, दिल्ली में तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है बैटिंग में. दिल्ली मतलब ये है कि अगर दिल्ली की बैटिंग अब चेंज होनी भी होगी तो नहीं होगी, मतलब और कोई प्लेयर आना. चलिए, मतलब लग क्या रहा है आपको कि दुबई और यूएई की जो पिचेस होने वाली है वो थोड़ी सी स्लो टर्निंग ट्रैक्स होंगे,
आपको लगता है कि शिखर धवन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स वो नॉक द बॉल सिंगल्स निकालेंगे, या अभी भी उनके लिए वही है कि भैया बॉल देखा और मारा छक्का? नहीं, शुरुआती ओवरों में तो ध्यान देना पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से जो प्लेयर्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आते हैं उनको थोड़ी मदद मिलेगी, ओपनर ओके, को थोड़ी कम मदद मिल सकती है। ठीक है। ओपनर्स के लिए डिफिकल्ट होगा, बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा है आपने। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो अमित मिश्रा है, रविचंद्रन अश्विन है, एक एक बैलेंस्ड स्पिन अटैक लग रहा है दिल्ली कैपिटल के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अबू धाबी, यूएई, शारजा जैसी पिचेस में। क्या लगता है आपको, बॉलिंग डिपार्टमेंट सॉर्टेड है या कहीं कोई कमी खिल रही है अभी बॉलिंग डिपार्टमेंट में? बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखो, क्रिस वोक्स चले गए तो उसमें दिल्ली को काफी दिक्कत होनी है, मेरे को लग रहा है। जी। क्योंकि जब ट्रेंट बोल्ट गए थे तो मैंने कहा इतना दुख नहीं है, क्योंकि क्रिस वोक्स आ गए हैं, तो अब मेरे को लगता है दिल्ली की बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी कमी हो सकती है। थोड़ी कमी है, तो मतलब लगता है ऋषभ पंत को वो लंबे छक्के डबल मारने पड़ेंगे, क्योंकि बॉलर्स यस। ने अगर रन लीक कर दी तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। चलिए जल्दी से हमें ये बताइए, टॉप परफॉर्मर प्लेयर कौन होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत क्योंकि मतलब क्योंकि उनका आप फॉर्मेट देखो, पिछले काफी सालों से 2018 में उन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाए इंडिविजुअल, हम्म, 2019 में भी उन्होंने काफी अच्छी मतलब पारियां खेली हैं, तो मेरे हिसाब से ऋषभ हम्म। पंत 2020 में भी कमाल करेंगे। वरना चलिए आई थिंक वरना ऋषभ पंत नहीं तो मेरे हिसाब से वो क्या नाम है उनका, शिमरन हेटमायर कुछ कर देंगे। ओके। चलिए अगर आप मेरे से पूछो तो आई रियली होप ऋषभ पंत कम्स टू पार्टी और लंबे लंबे छक्के मारे। एक चीज जो ऋषभ पंत से हम चाहेंगे एज अ फैन, के वो सिर्फ छक्के ना मारे बल्कि मैचेस भी फिनिश करे, बिकॉज एज अ मैच फिनिशर कैपेबिलिटी अगर उनमें आती है तो शायद इंडियन टीम का वो हिस्सा बन सकते हैं वापस लिमिटेड ओवर्स में। यस, चलिए हमसे बिल्कुल। बात करने के लिए मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज ग्रेट सर हैविंग यू ऑन एक द शो। सर एक ना मैं एक थोड़ी सी छोटी सी शायरी बोलना चाहूंगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बिल्कुल, अरे गो अहेड मैन, गो अहेड। कोरोना के समय में लोग जा रहे हैं क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स, और जो इस कठिन समय में भी ट्रॉफी लेके आए वो है दिल्ली कैपिटल। क्या बात है। चलिए दिल्ली कैपिटल ट्रॉफी लेकर आएगी तो आप पार्टी देंगे हम सारे भारत आर्मी फैंस को। सर क्यों नहीं। होपफुली ऐसा ही हो, कोरोना दूर भागे एंड दिल्ली कैपिटल्स चैंपियनशिप कप जीत के सर वापस बस आए। बात करने सर के लिए बस बहुत शुक्रिया। ये बता दो कि ये भारत आर्मी में मेंबर कैसे बने। अच्छा, ये आई थिंक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि भारत आर्मी में मेंबरशिप कैसे मिलती है। दो चीजें हैं, एक तो मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द मेंबरशिप। आपको अगर मेंबर बनना है तो bharatarmy.com पे जाइए, रजिस्टर ओके। करिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, रजिस्टर करिए, डिटेल डालिए अपनी, एंड आप बन जाते हैं ऑफिशियल भारत आर्मी मेंबर। मेंबर बनने के बाद आपको सारी लेटेस्ट क्रिकेटिंग अपडेट्स मिलेंगी, आप क्रिकेट मैच के टिकट्स खरीद सकते हैं भारत आर्मी के थ्रू, आप हमारे साथ मैचेस देख सकते हैं, आप हमारे साथ प्री मैच पार्टीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इवेंट पे आ सकते हैं। तो अगर आपको मेंबर बनना, आप ऑनलाइन जाइए bharatarmy.com पे, यू कैन रजिस्टर देयर एंड लाइक आई सेड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू ओके बी अ सर। मेंबर। ओके, परफेक्ट। थैंक यू सर। चलिए बात करने के लिए थैंक हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दैट वाज अ गुड वन टू वन। चलिए आई थिंक बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे से बात करनी है गाइस। अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत कम होता है हमारे पास एंड बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है, तो वी ट्राई टू स्क्वीज इन एज मेनी रिक्वेस्ट एज वी कैन। जल्दी से अगली रिक्वेस्ट लेते हैं। यथार्थ, क्या बात है, दिल वालों की दिल्ली जैसा हम जानते हैं। चलिए दिल तो बहुत बड़ा होता है दिल्ली वालों का। ये बताइए कि इस बार बड़ी ट्रॉफी आनी है या वही फाइनलिस्ट या प्लेऑफ पोजीशन से मन भरना पड़ेगा दिल्ली वालों का? नहीं नहीं सर, इस बार तो पक्का हम ही कप लेके जाएंगे दिल्ली वाले। चलिए इस बार दिल्ली जो वालों का। हमारी टीम बनी है जी। इस बार जो हमारी टीम बनी है बहुत ही सॉलिड टीम बनी है, तो होपफुली वी विल विन द कप। चलिए कब तो ठीक है यार, मेरे को एक बात बताओ, ये तुमने पीछे कितनी टी शर्ट डाल रखी है दिल्ली की? सर ये मैंने 3-4 डीसी की, ये अभी इस बार नई ली थी मैंने, और ये पिछले साल की और ये उससे पिछले साल की। मतलब बेसिकली अगले 12-13 सीजन तक हर मैच के लिए एक अलग जर्सी इकट्ठी हो जाएगी आपके पास? यस सर। सर डाई हार्ट फैन है हम दिल्ली के, छोड़ेंगे नहीं यार दिल्ली की जर्सी ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया। एक तो अपना कैमरा मत हिलाओ प्लीज, उसको स्टिल रखो सो दैट हम आपसे अच्छे से बात कर पाए। ये बहुत बढ़िया है कि दिल्ली वालों के फैंस ऐसे सॉलिड है कि मतलब एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट हो जाता है साल भर साल अगर आप नहीं जीतो एंड एक को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बट दिल्ली के फैंस में हमने देखा है कि कुछ भी हो जाए सपोर्ट करना नहीं छोड़ते। चलिए सपोर्ट की बात अगर आती है तो क्या लगता है
टॉप ऑर्डर बैट्समैन कौन होंगे ओपनिंग दिल्ली कैपिटल्स के इस साल? सर मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन को ओपन करना चाहिए। अगर पृथ्वी शॉ ना चले स्पिन के खिलाफ तो आई थिंक अजिंक्य रहाणे इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर अ बैकअप, क्योंकि स्पिनिंग पिचेस होने वाली है दुबई में, तो अजिंक्य रहाणे के पास जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली वर्क करेगा। अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन के बाद आई थिंक वन डाउन श्रेयस अय्यर, सेकंड डाउन शिमरॉन हेटमायर एंड देन वी हैव ऋषभ पंत। तो एक बहुत ही सॉलिड लाइनअप है यहाँ पे दिल्ली की। चलिए, आपने बात की कि अगर श्रेयस अगर पृथ्वी शॉ नहीं चलते तो हम अजिंक्य रहाणे को टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपन कराते हैं। आपको लगता है अगर शॉ चल पड़े और रहाणे का प्लेइंग 11 में आने का कोई चांस है, और अगर आते भी हैं तो कौन सी पोजीशन पे आप देखते हैं रहाणे को बैट करते हुए? मैं रहाणे को एज एन ओपनर ही देखूंगा, क्योंकि आई डोंट सी अ प्लेस इन अ मिडल ऑर्डर लाइक वी हैव फिक्स नंबर 3 एज श्रेयस अय्यर एंड देन शिमरॉन हेटमायर। इफ एनी केस पृथ्वी शॉ डजंट शोज हिज फॉर्म और ही इज इंजर्ड, देन वी हैव ग्रेट ऑप्शन ऑफ अजिंक्य रहाणे। चलिए ठीक है, बट आई थिंक अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 4 साल पीछे, अजिंक्य रहाणे ने वो जो सेमीफाइनल खेला था मुंबई में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, एज एन ओपनर पता नहीं क्यों हमें लगता है कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 150, 170, 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर पाए। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी दिल्ली के लिए जब उनको 200 चेस करने होंगे, 220 चेस करने होंगे आपके 20 ओवर में। आपको लगता है रहाणे इज सूटेड टू बी इन द प्लेइंग 11 व्हेन यू चेजिंग सच अ बिग टारगेट? I think not. I just don't believe too much on Ajinkya Rahane. I always believe on Prithvi Shaw and Shikhar Dhawan as a great opening batsman. क्योंकि हमारे पास जिस टाइम में अजिंक्य रहाणे खेलते हैं, we already have श्रेयस अय्यर जो ज्यादा अच्छा खेलते हैं और ज्यादा मैच्योरिटी के साथ खेलते हैं। I think श्रेयस अय्यर is a very important player for Delhi Capitals. साथ ही पृथ्वी शॉ भी हैं और ऋषभ पंत भी हैं। ऋषभ पंत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल होगा बिकॉज एमएस धोनी रिटायर हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से, लिमिटेड ओवर्स से। लिमिटेड ओवर्स में एक विकेट कीपर का स्लॉट खुल गया है एंड हमें हमेशा से लगता है कि ऋषभ पंत शायद वो स्लॉट फिल कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऋषभ पंत सूटेड हैं उस रोल के लिए कि वो कर पाए वैसी बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल के लिए? ऋषभ पंत बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। पिछले साल भी हमने उनका परफॉर्मेंस देखा था, क्या उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को लाइन के पार नहीं ले गए, लेकिन ऑलमोस्ट वहां तक ले गए। लेकिन इस साल जो उनके हमने प्रैक्टिस सेशन देखे हैं जो अभी दिल्ली कैपिटल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, तो इस साल वो बिल्कुल मेच्योरिटी के साथ खेलेंगे मेरे ख्याल से, और फिर उनको इंडियन टीम में पक्का डेफिनेटली चांस मिलेगा। मेरे ख्याल से वो टॉप प्रिंस कैप के भी एक बहुत बड़े दावेदार रहेंगे इस साल। आई थिंक बहुत बड़ी बात कही है आपने, के परफॉर्म तो करते थे लेकिन फिनिशिंग लाइन तक ले जाना नहीं सीखा है ऋषभ पंत ने। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऋषभ पंत के लिए कि ओवर द लाइन हमें लेके जाए, वो क्लोज मैचेस जितवाए, ताकि वो एक दिल्ली कैपिटल फ्रॉम मेकिंग इट टू द प्लेऑफ्स विल डेफिनेटली मेक इट टू द प्लेऑफ। चलिए, आज का हम आपके साथ सेगमेंट खत्म करेंगे। क्विकली ये बताइए क्या लगता है दिल्ली कैपिटल के लिए टॉप परफॉर्मिंग बॉलर कौन रहेगा और क्यों? टॉप परफॉर्मिंग बॉलर मेरे ख्याल से कगिसो रबाडा ही रहेंगे, क्योंकि जो उनकी एक्यूरेसी है, लाइन लेंथ है, मेरे ख्याल से कगिसो रबाडा को पिच बहुत हेल्प करेगी दुबई की। ओके, बट यार रबाडा कहीं इंजर्ड तो नहीं है? क्योंकि मैं टीम देख रहा था, मेरे को लग रहा है रबाडा इंजर्ड या है नहीं है सॉरी। ओके, आई वाज कंफ्यूज्ड ऑन अदर प्लेयर। या ओके, रबाडा। सो आपको लगता है टर्निंग ट्रैक में रबाडा खेलेंगे एंड विल बी अ टॉप परफॉर्मर बॉलर? रबाडा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया एंड होपफुली आपकी जर्सी कलेक्शन के साथ साथ ट्रॉफी कलेक्शन भी बढ़े एंड दिल्ली कैपिटल चैंपियन बने इस साल। थैंक यू सो मच। ग्रेट इनसाइट फ्रॉम अनदर फैन। जर्सी कलेक्शन तो उनकी बढ़ रही है बट ट्रॉफीज कहीं दिल्ली कैपिटल के लिए मिसिंग है। होपफुली दिस विल बी द ईयर। चलिए बात करते हैं अगले फैन से, देखते हैं कौन है। चलिए, मतलब आज दिल्ली की पूरी ब्रिगेड यार दिल्ली कैपिटल की जर्सी पहन के बैठी हुई है, रेडी कि अगर मौका लगा तो खुद दुबई चले जाएंगे मैच खेलने सारे। हाँ, 12 साल से बैठे हुए, एक ट्रॉफी तो आई नहीं है, तो अब इस साल तो उम्मीद है कि दे गेट द ट्रॉफी होम फॉर अस। यार एक मेरे को बात बताओ, मैं 6 साल दिल्ली रहा हूँ, दिल्ली वाले बोलते वो जुगाड़ू होते हैं यार, ट्रॉफी क्यों नहीं जुगाड़ कर पा रहे हो? मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि 12 साल से एक दिल्ली को ट्रॉफी नहीं मिली है? क्या जुगाड़ तो दिल्ली में चलती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑन द क्रिकेट फील्ड जुगाड़ नहीं चलती, बिकॉज यू नीड टू विन इट ऑन टैलेंट एंड स्किल। एंड द थिंग इज फॉर दिल्ली इन द पास्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स द ऑक्शन strategy has been very weak, so the team that the coaches had to play with, it's not been the strongest team, but I think this time they put together a really strong team. They've covered all the bases, and I mean it's never good that when someone gets injured, but I think the injuries have actually helped Delhi this year, because Nortje and Sams, they are brilliant death bowlers, and we were missing a backup to the
Rabada last year. Because last year when Rabada got injured, our season fell apart. And I think this time the fact that we have backup to Rabada is key, and I think that is going to propel us to the title this year. Chaliye, I think very logic point that you told us. Delhi has always missed their core players. By core, I mean, they've actually retained their main players year after year, something that Mumbai Indians and Chennai Super King, two teams who've been very successful in IPL, have done year after year. Talking about the young Arsenal that Delhi Capital has, क्या लगता है आपको, मतलब बैटिंग कैसी है दिल्ली कैपिटल की? क्या लगता है, परफॉर्म करेगी या इनएक्सपीरियंस साइड है? आई थिंक यंग वो सिर्फ अब एज में रहे हैं, जैसे पंत, आयर और शॉ, दे यंग इन एज. लेकिन यंगस्टर जब आप बोलते हैं आईपीएल में आ रहे हैं, दैट नॉर्मली मीन्स यंगस्टर जिसने कभी दिल्ली के लिए जिसने आईपीएल या इंडिया खेला नहीं है. लेकिन अब आयर इज अ मेन स्टे इन द इंडियन टीम नाउ. पंत भी खेल चुका है काफी इंडिया के लिए, शॉ खेल चुका है, धवन खेल चुका है. आई मीन अब ये यंगस्टर नहीं रहे, अब इनके लिए अब उम्मीद रहेगा कि दे विल कैरी द टीम. लाइक शॉ फॉर मेनी सीजंस has it really quick fire 20s and 30s. This season hopefully Shaw will hit big scores 70, 80, and I think this year with the addition of Shimron Hetmyer, and I think a key addition is Marcus Stoinis, because if you've seen him play with Australia, Marcus Stoinis has been a great batsman. BBL में भी also उसने बहुत अच्छा किया. He's come top of the pile for the last 2 seasons. So I think Marcus Stoinis gives great flexibility in terms of he can bat up the order at number 3 if Delhi want to make Iyer bat at 4, which is his preferred position when he plays for India. That gives you a longer batting as well with Pant at 5 and 6. So I think Marcus Stoinis is one player that a lot of people are not hyping up a lot, but I think he'll be a very key player for India, for Delhi this season. I think Stoinis को ना हम hype ना ही करें तो better है before the IPL, because we saw what he did in the T20 match against England. Couldn't chase such a small target, but every single player is coming back from. But to be fair to him, in that first game, firstly, as you're right, it was after a 6-month layoff, but also Stoinis was batting at 6, and I think Stoinis' best position in T20 is if he bats up the order at opening or third. And yes, and he did that in the last game, and he was good. He was really good in the last game when he scored 35. Yes, and okay. बात करते हैं ऋषभ पंत की. क्या लगता है आपको, कितना important है उनके लिए IPL? Not just because he's been knocking at the Indian cricket team's door for quite a while, not been a permanent fixture. Now that MS Dhoni is retired, do you think it's time Rishabh Pant makes it to the playing 11 full time? Or, we still have to mix and match and see who fits into the team other than Rishabh Pant? So I've always been a massive Rishabh Pant fan. मुझे लगता है he's a great player. He does really well for our team. And Rishabh Pant का he's always done very well in the IPL. Indian team he's very off and on, but last 2 seasons he's been in the top 10 run scorers for the IPL in terms for Delhi Capitals. So I think Rishabh Pant, I hope he has a really good season, because as you said, Dhoni's retired now, and that जो कीपर का स्लॉट है इंडियन टीम में, अभी तो केएल राहुल खेल रहे हैं, बट KL Rahul is a top player, but I think Rishabh Pant is probably a better keeper than KL Rahul. So I really hope that Rishabh Pant has a great season. He's anyway on the fringes of the Indian team right now. He's probably backup keeper to Rahul. So I hope he has a great season. He propels and he plays with a lot more maturity, because last season there were 2 matches. One was against Punjab and the other was against KKR, where Pant had the chance to finish the game for us, but he didn't manage to do that. And especially that Punjab game, that was heartbreaking. Because we needed, I think, some 23 or 23 balls. Or Pant and then Pant played a really wild stroke. He got bowled, and then we lost the game from there. I remember, yes. So, for him, I hope he takes it home this season. I hope he takes us to the finish line. Okay. I think year after year, a lot of people have been saying this, that Pant needs to be groomed, needs to be told that, in order to become a proper international finisher, he needs to finish those games, not play those loose shots. How important do you think Ricky Ponting as a coach is going to play? His role would be, in grooming players like Pant, Shaw and Iyer going forward? I think Ricky Ponting coming to Delhi is one of the best decisions Delhi has ever made, because Ricky Ponting as a coach, we know he is very good, and he's even last year, jab Iyer was a new captain in the Delhi team, he really groomed him. He took the tough decisions. He made sure that Iyer had less pressure on him, and I think Ricky Ponting is a great personality. He's obviously one of Australia's best batsmen ever, so he can really groom. Not only he can groom Shaw in terms of his batting, but I also feel for Pant, it's very important to learn the mental side of things from Ricky Ponting, because Ricky Ponting made some really tough decisions as Australia captain. He's been in tough situations, and I think Pant has a lot to learn, and he learned a lot from Ganguly last season as well.
But I think from Ricky Ponting this year, if he can really learn how to make the tough decisions and make sure that you take responsibility of your actions and take the team home, then Ponting has a huge role to play for this Delhi side even this year. चलिए, well, keeping our fingers crossed. Delhi is my second pick after Chennai Super Kings. Hopefully, I really want a Delhi CSK finals, and then I mean it's anyone's game. It was great talking to you. Thank you so much for joining us on the show today. Thank you. Well, another great one-to-one with another Delhi Capital fan. I think बहुत ही मजा आ रहा है आज के शो पे. Delhi Capital के फैन जो हैं, I think जैसा कि मैंने कहा 12 सीजन हो चुके हैं, एक बार भी आईपीएल नहीं जीते, बट आई थिंक उनका जो जज्बा है अपनी टीम को सपोर्ट करने का कहीं भी कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है. साल दर साल अपनी टीम को बार बार वो सपोर्ट कर रहे हैं. होपफुली दिस विल बी देयर बिग ईयर. चलिए, अब आई विल नाउ गो अहेड एंड ऐड अनदर फैन टू द शो टुडे. I've been a Delhi Capitals fan since 2008. Okay, 2008 Delhi Capitals, Delhi Daredevils then, and Yeah. 2 years back Delhi Capitals. And Okay. I was also a net bowler for them in 2015 and 16 season. वाओ. चलिए, आई थिंक बहुत ही मजा आएगा आपसे फिर तो बात करने के लिए. ये बताइए, किन प्लेयर्स को आपने नेट पे बॉल डाला था, मतलब ऐसे कौन से प्लेयर्स थे? It was JP Dumini, Mayank Agrawal was there. He used to, do practice with Praveen sir. Praveen Amre was the coach at that time. So he used to take Mayank Agrawal for around 1.5 hours, and then he do the throw-ups. And I was there, and then Amre sir said me के अच्छा आप बॉलिंग करते हो तो आप इन्हें बॉलिंग करवाओ, लेफ्ट आर्म हो तो और भी अच्छी बात है. तो काफी एंजॉय करा. और जहीर खान उस टाइम थे टीम में, तो उनसे भी टिप्स वगैरह ली थी काफी. चलिए, बहुत बढ़िया. अब हमें ये बताइए, क्या लगता है दिल्ली कैपिटल का चांस है इस बार आईपीएल जीतने का? According to me, they are one of the top contenders to win the IPL this year because इतनी बैलेंस स्क्वाड दिल्ली की आई थिंक मैंने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि हमारे सारे एस्पेक्ट्स कवर करे हुए हैं हमने. अगर आप बैटिंग को लें तो बैटिंग में शिखर धवन, जिनका पावर प्ले में बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा उनका एवरेज भी है पावर प्ले में, अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन स्कोर करते हैं. उसके बाद इफ यू टेक स्पिनर्स में हमारे पास रविचंद्रन अश्विन है, नॉट टू फॉरगेट कि अश्विन का परफॉर्मेंस यूएई में जब 2014 में आईपीएल हुआ था तो काफी अच्छा था. इवन तीन हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जिनका यूएई वाली लीग में जब आईपीएल हुआ था वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस था. मोहित शर्मा बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डालते हैं और उनसे बेटर वो बॉल कोई नहीं डाल सकता. तो उनके लिए दुबई की पिचेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि वो अच्छा मिक्स करते हैं स्लोअर वंस और वेरिएशंस उनके पास काफी हैं. रविचंद्रन अश्विन के पास एक्सपीरियंस है, प्लस अक्षर पटेल बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म ऑप्शन है हमारे पास. अगर हम कंपेयर करें उन्हें रविंद्र जडेजा से, फील्डिंग में भी वो अच्छे हैं. और आप उनका एवरेज देख लीजिए आईपीएल में कैसा रहा है. काफी उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है, काफी ज्यादा डॉट बॉल्स भी डाली हैं और काफी प्लेयर्स को परेशान भी करा है. एंड पर्सनली आई फील के श्रेयस अय्यर के लिए ये आईपीएल आई थिंक ही इज गोना बी द टॉप परफॉर्मर फॉर दिल्ली कैपिटल्स दिस ईयर, बिकॉज कैप्टन है और जब से वो कैप्टन बने उनका गेम काफी इंप्रूव हुआ है, काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा है. उसके बाद इंडिया के लिए भी वो खेले हैं, नंबर 4 पर काफी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं. तो मेरे ख्याल से कैप्टन अय्यर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ईयर रहने वाला है ये. और एक प्लेयर जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा ईयर, वो है ऋषभ पंत, बिकॉज एमएस धोनी रिटायर हो गए हैं. तो ऋषभ पंत के माइंड में वो बात होगी कि अब उनका चांस टीम इंडिया में काफी अच्छा बन गया है और कंसिस्टेंटली अगर वो परफॉर्म करेंगे तो ही इज अ मैच विनर. बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी. अगर आपकी गेम में कंसिस्टेंसी है तो आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. जी बिल्कुल. चलिए, आई थिंक आपने मेन टॉपिक सारे कवर कर दिए दिल्ली कैपिटल्स के लिए. टेल मी समथिंग, हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक रिकी पॉन्टिंग होने वाले हैं एज अ कोच टीम के लिए? रिकी पॉन्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एज अ कोच टीम के लिए, बिकॉज 2013 में उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ जब वो थे तब उन्होंने आईपीएल जीता था. फिर 2015 में जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता तब वो उनके कोच थे. तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन एंड एज अ कोच. उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो इस बार दिल्ली कैपिटल्स को हेल्प कर सकता है. क्योंकि अगर आप देखें अभी दिल्ली कैपिटल्स में 2 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, एक नॉर्किया आए हैं
और एक डैनियल सैम्स आए हैं, और डैनियल सैम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि दिल्ली की टीम में एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर मिसिंग था, जो कि डैनियल सैम्स के आने से वो एरिया भी कवर हो गया। और डैनियल सैम्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है डेथ बॉलिंग में। अगर आप बीबीएल देखें तो बीबीएल में पिछले 2 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर उन्हें नई बॉल दी जाए, अगर रबाडा या नॉर्किया के साथ उन्हें ओपनिंग बॉलिंग दी जाए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दिल्ली कैपिटल्स को हो सकता है, अर्ली विकेट्स मिल सकते हैं। और रिकी पॉन्टिंग जो है एज अ कैप्टन, उन्होंने अय्यर को लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छे से देखा कि कितना अच्छे से उन्होंने अय्यर को एज अ कैप्टन ग्रूम करा है। उसी तरह ऋषभ पंत को भी वो मेंटली जो एक प्लेयर होता है कि मेंटली थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए, तो जो रिकी पॉन्टिंग टिप्स देंगे ऋषभ पंत को, श्रेयस अय्यर को, अभी मैंने पीछे देखा था एक सेशन में अजिंक्य रहाणे को भी वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे थे बैटिंग करने की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं रिकी पॉन्टिंग एंड दिल्ली कैपिटल्स, दिस इज द ईयर फॉर देम। चलिए, वेल 10th November we get to know whether Delhi Capital or it is someone else who's going to lift the cup. Thank you so much हम साथ बात करने के लिए। Well, a very good one-to-one with this fan as well. Guys, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं कि रिकी पॉन्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है आपके अकॉर्डिंग एज अ कोच। क्या लगता है आपको, कितना फेवर करेगा दिल्ली कैपिटल्स को टू हैविंग समवन विद द कैलिबर ऑफ रिकी पॉन्टिंग? चलिए, लास्ट 2 रिक्वेस्ट इसके पहले कि मैं आज का सेगमेंट खत्म करूंगा, 2 more requests that I'll be taking now. Hi, quickly tell us which city are you from? शुभम फ्रॉम दिल्ली। शुभम दिल्ली से, मतलब आज लॉटरी निकल गई यार, जिसको ऐड कर रहा हूँ सारे दिल्ली से निकल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। Actually, I'm a part of a Delhi crew from 2017. So 3 years I've been associated with Delhi Capitals. Yeah. तो दिल्ली कैपिटल के साथ 2017 में आप एज अ टीम का हिस्सा थे? Yeah, 2017, 18, 19 and 20. This is also I am a part of a DC crew. चलिए शुभम, हमें ये बताइए कि चांसेस क्या लगते हैं आईपीएल में इस बारी दिल्ली कैपिटल्स के? दिल्ली आए हैं तो हम दिल्ली वाले तो रोड तो मचाएंगे, तो पक्का फाइनल तो खेल रही है। फाइनल्स खेलना ही है? अच्छा, सिर्फ फाइनल्स खेलना है या इस बारी जीतना भी है? जीत के जाएंगे यार, दुबई में आए, पार्टी तो करनी है। मतलब ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स दुबई में झंडा गाड़े, उसके बाद दिल्ली की रोड्स, मतलब साकेत से लेके कनॉट प्लेस से लेके चांदनी चौक पूरी लोगों से भर देनी है इस बार, है ना? अरे पूरा दिल्ली ने छोड़ना है, एनसीआर कवर करना है, चंडीगढ़ तक लेके जाना है। दिल्ली तो ग्रेटर चलिए, एनसीआर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लगता है आपको इस बारी टॉप परफॉर्मर प्लेयर कौन रहेगा दिल्ली के लिए? मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, जो अश्विन है, हमारे रहाणे हैं, क्योंकि वो 2 पुरानी टीम के कैप्टन रह चुके हैं, तो और मैं देखना चाहता हूँ, जैसे आप सारे पंत के पीछे पड़ गए, आई वांट यार छोटा लड़का भी, उसको प्रेशर ना दो, ठीक है? अभी हमारे और प्लेयर्स आ चुके हैं, ठीक है, वी शुड फोकस ऑन देम। जैसे हमारे मिश्रा भाई साहब है, ठीक है, मिश्रा भैया है, जैसे हमारे पास आपके भूल जाते हैं लोग, अक्षर पटेल है, ईशान भैया है, ठीक है, तो वो दीज आर द की प्लेयर फॉर दिल्ली कैपिटल्स दिस टाइम। बेसिक आई सी शिरमन हटमायर एज अ टोटल फॉर मी, एंड ऋषभ पंत शुड टेक अ टाइम। अभी वो ठीक है, ही इज प्लेइंग फॉर द यूएई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो काफी लोग कह रहे हैं कि 2014 में ये हुआ, मैक्सवेल ने मारा। आई वुड रिमाइंड देम दीज थिंग्स कि जो आईपीएल वाला हुआ था वो अप्रैल और मई में हुआ था, और ये वाला सितंबर में। और जो कंडीशन जब हो जाती है यूएई की, बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट, अब ब्रीज नहीं चलेगा, तो बीइंग दिस पिच विल बी ड्राई, हम लोग जैसे एशिया कप में देख चुके हैं। तो दैट टाइम द की विल बी शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, जो स्लो खेलते हैं, क्योंकि दुबई इज अ ग्राउंड विच इज लो पिचेस, तो दैट स्कोर विल 126 to 136। अबू धाबी में 135 to 145 होगा। शारजा हैव अ शॉर्ट बाउंड्री, वहां पे वी विल सी 155। सो बेसिकली आई एम सीइंग अ चांसेस ऑफ मुंबई प्लेइंग दिल्ली इन अ फाइनल दिस टाइम, because Mumbai has 7 matches in Abu Dhabi. This will be a key factor. So अब दिल्ली वाले मुंबई से डरते थे यार। ऐसा है ना भाई, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुंबई को आईपीएल फाइनल खिलाना बंद करो, और अगर खिलाना भी है ना तो आई एम टेलिंग यू दे नीड टू बैट सेकंड, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम मुंबई हैज गॉन टू विन द आईपीएल, they बैटेड फर्स्ट एंड they managed to win the IPL final. अरे नवंबर 10 को तो पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। चलिए, नहीं वैसे इस बार ऑड वाला चक्कर भी है, मुंबई का कहते हैं लोग कि इवन ईयर में जीतते या ऑड ईयर आके तो नहीं जीतती। चलिए, आई थिंक एक आपने बहुत वैलिड पॉइंट 2-3 बातें कही हैं जो बहुत सारे ऐसे क्रिकेट फैंस मिस कर रहे थे कि जो लास्ट टाइम दुबई में हुआ था आईपीएल में, वो अप्रैल में हुआ था। अब बैकग्राउंड देखिए, मेरा सचिन है, ठीक है, मुंबई फैन भी हूँ साथ में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं बोल रहा था कि एक तो अप्रैल मई में हुआ था आईपीएल, इस बार सितंबर अक्टूबर नवंबर में है। सिचुएशन बहुत डिफरेंट रहेगी। उस टाइम पे हमने बहुत डिफरेंट वेन्यूज में खेला था, इस बार डिफरेंट वेन्यू है, तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक्चुअली वेन्यूज बिल्कुल सेम है, प्रॉब्लम ये है कि पिचेस जो चुकी है वो कंडीशन काफी चेंज हो जाएंगी,
क्योंकि Exactly. जो हमारा वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टाइम होता है इस वक्त में, क्योंकि मेडिटेरियन सी से वेव आती है, तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इसको इजी कर देगा, जिससे बैट्समैन की कंडीशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान जब खेलता था यूएई में, इस टाइम में रन बनते ही नहीं थे। यू माइट बी फॉलोइंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इसी टाइम पे खेला है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विच वी सी इन दिस आईपीएल। तो जो स्कोर्स होगा हमारा, शारजा को छोड़ के किसी भी ग्राउंड में रन नहीं बनता, क्योंकि शारजा की लेग साइड की बाउंड्री है वो काफी बड़ा है, तो वो काफी छोटी है कम्पेयर टू अदर वेन्यूज। तो शारजा में आप रन के लिए बोलिए, बाकी सब जगह लो रहेगा। अब चलिए, वेल क्विकली आप हमें ये बताइए, ऑरेंज और पर्पल कैप विनर कौन होगा दिल्ली कैपिटल की तरफ से, अगर कोई होगा तो? अगर ऑरेंज कैप के हिसाब से जाना चाहिए मेरे हिसाब से, आई विल गो विद द ब्लाइंड चॉइस। ओके, इट्स अ ब्लाइंड। आई विल गो विद आई गेस आवर कैप्टन अय्यर। अय्यर, ठीक है, बहुत बढ़िया चॉइस है। एंड द पर्पल कैप आई थिंक अश्विन। अश्विन, ठीक है, मतलब अश्विन जिनका T20 और वनडे क्रिकेट से नाता ही खत्म हो गया है, उनको आप पर्पल कैप दे रहे हो और चांसेस है कि मतलब ही बी नॉकिंग ऑन द डोर और कुलचा के स्पॉट में से किसी एक को वो लात मार निकालेंगे। अब दिल्ली आए हैं तो कुलचा तो हमारे छोले के साथ खाया जाता है यार, बॉलिंग में काम हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग चैट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो टुडे। चलिए, आई थिंक दैट वाज वन इंटरेस्टिंग चैट। बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा है इस फैन ने कि पिछली बार जो आईपीएल हुआ था यूएई में अप्रैल मई में हुआ था, और इस बार ही सितंबर अक्टूबर नवंबर है। Situation conditions are going to be very different for Delhi Capitals. Only time will tell whether they'll be able to adapt to their situation, how they'll be able to cope up with what comes their way. Guys, इसी के साथ आज का सेगमेंट हमारा खत्म होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है with the Delhi Capital fans. Hopefully, they do perform well. बहुत ही young side है Delhi Capital का। A lot of people are hoping they perform well. Before I end the show, like I said, एक फैन जिसको मिलेगी गली की तरफ से स्पॉन्सर्ड एक आईपीएल दिल्ली कैपिटल की जर्सी। द विनर इज अहान गुप्ता। Ahan, congratulations. Someone from the Bharat Army team will get in touch with you to note down your details. Guys, that brings us to the end of today's segment on Chat with Chhabra, Delhi Capitals. कल हम आएंगे, वापस we'll join you all 7:30 PM Indian Standard Time। बात करेंगे मुंबई इंडियंस फैंस के साथ, डिफेंडिंग चैंपियंस IPL 2020। तब तक के लिए stay safe and thank you so much for joining me today. Good night.